Welcome back to my YouTube channel English with Rabia Hassan. Viewers, I hope you all are doing well. Today we will discuss active and passive voice. We will only discuss the part 1 of that. For your ease, I have distributed that video in different parts so that we can learn it easily. So let's start the video. In the introduction, you can see I would like to tell you about the importance of the active voice and passive voice. So let's start this. Generally speaking, it is the best to use active voice, but I can only say in this, हमें लगता है there is the importance of active voice, but passive voice is also very important. It plays its own role. कैसे play करती है? I will tell you in the next part. For example, I took a cup of tea. I performed an action. मैंने कोई action perform किया और वो subject के around ही रहा. पहले subject आया and then the action came. So this is about the active voice. Instead of saying that a cup of tea was taken by me, मैंने क्या किया जाने वाला काम पहले आ गया और मैं जो बतौर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा था, अब मुझे एट द एंड ऑफ सेंटेंस में जाना पड़ रहा है. दिस इज इन द पैसिव वॉइस. सो हम समझते हैं एक्टिव वॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन sometimes it is not like that. The passive voice is not important. हमें ये नहीं कहना चाहिए, या हम ये कह भी नहीं सकते that there is only one voice is important, that is active voice. Passive voice is also has its own importance. Focus on the object rather than the subject. Sometimes we have to emphasize the object of the statement. हमें action से ज़्यादा जो उसमें subject से ज़्यादा जो statement में किया जाने वाला काम है उसकी importance को show करना है. That is more important than we use passive voice. तब हम passive voice को use करते हैं. Subject is unknown. Mostly this happens कि हमें काम करने वाला person पता ही नहीं होता. There is only action. Then we use passive voice. And in the third case you can see to create suspense or dramatic effect. जब हमने किसी भी ड्रामा राइटिंग में या कभी कोई स्टेटमेंट लिखते हुए अपनी राइटिंग को थोड़ा क्रिएटिव करते हुए खूबसूरत बनाते हुए देन वी यूज पैसिव वॉइस. सस्पेंस क्रिएट हो जाए, बिकॉज पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिससे ये होता है स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला पर्सन है, वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है. in other slides you will learn more about active and passive voice, so I am going to those parts. Viewers, you can see that in the conversion is very important. Listen to me carefully. The passive voice using the auxiliary verb. What is auxiliary verb? If you have not seen my video that is about types of verb, then you can check that video or I will give you the link in the description box. The passive voice is formed by using a form of auxiliary verb. Basically, I can tell you that in this auxiliary verbs help the verb. अब हमें पता है there are three types of verb. First type, first form, second form and the third one. First form हम commonly use करते हैं present tense में, जैसे हम present indefinite में use करते थे. For example, like, 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 sleep. सो इनकी फर्दर आगे जो फॉर्म्स हैं वो क्या है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. अब समटाइम्स जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि स्लीप की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो सेम है, सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इन बोथ ऑफ देम. सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, वो कभी भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करती. उससे हमें पता लग जाता है दैट हियर इज द फॉर्म दैट इज सेकंड वन. एंड द थर्ड फॉर्म ऑलवेज नीड ऑक्सिलरी वर्ब. वो कमजोर है और वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर अपने आप को सेंटेंस में अपने एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती. तो देन अगर प्रेजेंट होता है तो हम इज आर एम यूज कर लेते हैं, पास्ट होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब was were यूज कर लेते हैं, had यूज कर लेते हैं, एंड इफ वी आर इन द फ्यूचर कंडीशन तो हम वहां पर shall या will को यूज करके सेंटेंस में जो थर्ड फॉर्म है उसके एक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो अब अगर आप देखेंगे
यहाँ पर बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सारी फॉर्म्स आएंगी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें भी हैव आ जाता है जो उसकी थर्ड फॉर्म को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अगर हमने स्लेप्ट फ्यूचर में यूज करना है तो विल हैव स्लेप्ट ऐसे आ जाएगा। वी हैव यूज्ड दिस कंडीशन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी देन आई विल ऑल्सो गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो एज वेल। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमने फ्यूचर में थर्ड फॉर्म को ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कैसे एक्सप्रेस किया था। अब अगर हम एक्टिव और पैसिव के डिफरेंस को देखें, इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टॉट यू दैट बट आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। ही लव्स मी, एक्टिव वॉइस में क्या है, जो सब्जेक्ट है आपका वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और जो किया जाने वाला उसका काम है वो, और जिसके साथ किया जाने वाला काम है वो आगे आ जाएगा। सो ही लव्स मी, बट ऑन द अदर हैंड यू कैन सी दैट आई एम लव्ड, जो थी एक्शन की स्टेट वो कंडीशन में कन्वर्ट हो गई है। कोई चीज एक्शन से या डूइंग से बीइंग में चली गई है, कोई काम करने से होने में शिफ्ट हो गया है। अब पहले क्या था, वो प्यार करता है, अब वो क्या है, उससे प्यार किया जाता है। सो पहले वाली स्टेटमेंट में एक्शन था और दूसरे वाली स्टेटमेंट में कंडीशन थी। द सेकेंड सेंटेंस विल एक्सप्लेन इट मोर। वी टुक आवर चिल्ड्रन टू सर्कस, आप बच्चों को कहाँ लेकर गए, हम सर्कस में लेकर गए। इन द पैसिव वॉइस यू कैन सी द चिल्ड्रन वर टेकन टू द सर्कस। इस स्लाइड में आपने सिर्फ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन को देखना है, टेंस के चेंज को नहीं देखना। मैं आगे अगली वाली स्लाइड्स में इन्हें सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगी। आप सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व करें व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और व्हाट इज द कंडीशन, और व्हाट इज एक्शन। अ थीफ स्टोल माई मनी, चोर ने क्या किया, काम करने वाला पर्सन सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, उसने क्या किया, रकम चुरा ली। अ थीफ स्टोल माई मनी, बट इन द पैसिव वॉइस काम जो किया गया, जो कंडीशन हुई, जो सूरत हाल वहां पर बनी वो पहले आ जाएगी, और किसने वो बनाई, वो पर्सन आगे शिफ्ट हो जाएगा स्टेटमेंट में। माई मनी वॉज स्टोलन। Notice one thing here, how the be auxiliaries, be means we are talking about be, am, is, are, was, were, be, being, been. So how the be auxiliaries change the meaning of the verbs, कि जो करने वाला काम था, जो होने वाला काम था, from action to condition, वो करने वाले काम से सूरत हाल में तब्दील हो गया। और we can say that it has converted itself from doing to being, कोई चीज करने से होने में चली गई। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी व्यूअर्स वर्ब टेंसेस यूज्ड इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हमने 12 टेंसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। काइंडली चेक माई दैट वीडियो एज वेल इन द डिफरेंट पार्ट दैट इज देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो दैट इज ऑफ टेंसेस। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, देन यू कैन इजिली लर्न द कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव वॉइस टू द passive voice. As you can see viewers, in the present time, अब हमारा पहला viewers you can see that simple present. If you have not seen my video of tenses, then you can check that video as well. Use this simple present tense to make an overview, to present a state of being or to indicate a usual or repeated action. हमें पता है simple present tense में basically वो action आते हैं जो daily basis पर किए जाते हैं। जैसे कोई स्कूल रोजाना जाता है, कोई पढ़ाता है, कोई पका रहा है, पकाता है, या कोई जो भी काम करता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। इसकी कन्वर्जन कैसे होगी एक्टिव से पैसिव में, हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है और उसमें एस या ई एस का एडिशन किया जाता था, जबकि आई, वो, यू, दे में हम एस और ई एस का एडिशन नहीं करते थे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते करते हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म को चूंकि यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में प्रेजेंट ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए होंगे, जो एम, इज या आर हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन द कन्वर्जन मोर। प्रोफेसर नाजिर टीचेस स्टूडेंट्स।
अब यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर नाजिर एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए आपने सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट लास्ट में और लास्ट वाला पार्ट स्टार्ट में लेकर जाना होता है, और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करता बट अपनी वर्ब की फॉर्म चेंज करता है। तो आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, स्टूडेंट्स आर, यू कैन सी स्टूडेंट्स है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, एंड द सेकेंड फर्स्ट फॉर्म विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू द थर्ड वन, टीच टू taught, and by is helping the Professor Nazir because Professor Nazir is converting itself from subject to object, तो यहाँ पर उन्हें by की जरूरत पड़ेगी। The second example is Maria eats pizza, so you can see that pizza is eaten by Maria. So this is all about the conversion of simple present active into the passive voice. Now I will tell you about the next part of that tense. Now viewers, you can see that present progressive, something that is continuous, something that is in the form of continuity. So use the present progressive to describe an ongoing, continuing action, activity और a temporary action। कोई चीज जो continuous है उसे हम present progressive में express करते हैं, और हमें पता है हमने जब tenses को read out किया था तो continuous में हम verb के साथ ing लगाते थे और helping verb भी आता था, that was is, are or am. Now in the active voice, how we have to convert it from the active to the passive one, am is are will remain the same, ing की बजाय यहाँ पर हम being यूज करेंगे, and we know that the third form of verb will come। अगर हमारे पास like है तो liked आ जाएगा, अगर हमारे पास eat है तो eaten आ जाएगा। You can see that addition of ed or en at the end of the first form of the verb. Example will explain it more. The students are learning Spanish, so the first part will go to the end one, and Spanish is being learned by the students. You can see viewers here, the students is at the end now, and the Spanish will come in the start of the sentence. Spanish is being learned by students. Learn the conversion from active to passive, then it will be very easy for you to make the passive voice from the active one. आपके माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, आपने ये चीज याद कर लेनी है कि जब भी आपके पास ing वाला कोई सेंटेंस आएगा तो उसमें बीइंग जरूर आएगा, और थर्ड फॉर्म वर्ब की तो आएगी ही, और इसके अलावा अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अपने जमाने के मुताबिक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग इज, आर, एम का एडिशन करना है। So the second example is I am baking a cake. A cake is being baked by me. So अगर I सेंटेंस के स्टार्ट में है तो वो I के तौर पर ही, मैं हूं तो I के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर हमने इसी I को सेंटेंस के लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो देन हम इसे pronoun बनाकर यूज करेंगे। A cake is being baked by me. So this is about the present progressive. Now I am moving to the next part of that. After the present progressive tense, we have to make the passive voice of the present perfect. Use the present perfect to describe an action occurring in the past but relevant to the present or extending to the प्रेजेंट। कोई भी ऐसा किए जाने वाला काम जो कि प्रेजेंट में हैपन हो रहा था वो अपने आप को पास्ट में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है। कैसे, एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देगी उसको। एक्टिव वॉइस में क्या है, हैज और हैव आता है, हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसिव में हैज और हैव विल रिमेन सेम, थर्ड फॉर्म विल रिमेन सेम, आपने एडिशन करना है बीन का। So Professor Nazir has opened a language institute in Lahore. Professor Nazir यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे थे, हम ये सेंटेंस के लास्ट में ले जाएंगे, और has opened will remain the same, we only have to add been. A language institute
has been opened by Professor Nazir in Lahore is extra. It is coming as something that is extra, कोई एक्स्ट्रा चीज़ के तौर पर आया है तो इसे हम लास्ट में वैसे ही लगा देंगे. इसके सीखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और करेक्ट कन्वर्जन पर फोकस रखना है. जो किसी भी सेंटेंस में कोई अगर एक्स्ट्रा पार्ट आएगा तो आप उसे एज इट इज शिफ्ट कर देंगे. आई वुड लव दैट इफ यू विल गिव मी at least one example of present perfect tense in the active and passive voice. I would like that. I am waiting for this, that you will send this to me in the comment section. Now viewers, I am moving to the next part of the present tense, that is present perfect progressive या present perfect continuous. Use the present perfect progressive to describe an ongoing action. इसमें भी progressive means कोई चीज़ continuity में है तो कोई चीज़ चल रही है वो अभी भी continuous है. Action beginning before now and is still relevant to the present. कोई action है जिसको शुरू कर दिया गया है बहुत साल पहले और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूस है, अभी तक चल रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं. तो अब इसमें हमारे पास एक्टिव में सिंपली क्या आता था, हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन बीन प्लस आईएनजी. लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा हैज और हैव विल रिमेन सेम. Been is like that before active voice plus being plus ed or en, like according to the form of verb. अगर like है तो liked हो जाएगा, eat है तो eaten हो जाएगा. Note, because of the awkward construction of the perfect progressive form is not used in the passive voice. इसकी जो formation है वो बहुत ही awkward है, so we cannot convert the active voice of present perfect progressive into the passive one. Instead, an adverb may be used to show the continuing action. We have been repeatedly scolded for being late. तो यहाँ पर क्या है, हम एडवर्ब यूज कर इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं बजाय कि हम इसकी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करें. सो दैट इज वाई इस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो पढ़ने में और समझने में बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है. दैट इज वाई वी आर नॉट मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ दैट. इसके लिए हम एडवर्ब की हेल्प ले लेते हैं और उसे एक्सप्रेस कर देते हैं. So viewers, this is all about the first part, or we can say that it is all about the present tenses. We have learned how we have to convert it into the passive voice from the active one. So I hope you liked today's video as well.